Only last two topics are left. Now, the today's lecture is about the genetic algorithm, and the next lecture will be about neural networks, and then the syllabus will be over. So let's begin with the genetic algorithms. We will try to complete this topic in today's lecture itself. Okay, so in genetic algorithm, the first thing to remember is that it is an optimization method. It is a very famous optimization method and similar to something that we did in gradient descent, in which we tried to optimize the solution and we tried to find the global minima. In this case also, we will try to find the fittest solution. In this, we will discuss what does this fit mean, but we will be working with this algorithm to find an optimized solution. This solution is a nature-inspired algorithm. This is nature-inspired and it is based on theory of evolution. In this, we will be discussing about the offsprings and how does two uh, two or more chromosomes mutate and get the better version. So it is based on the theory of this survival of the fittest. In this, only fit solutions would be allowed to further produce new solutions. So depending on which solution is fit out of the population, we will discuss what is population. So whichever solution is fittest, that will be moved forward. So first of all, we need to discuss that how this algorithm is different from other optimization techniques, from other optimization techniques. So for this, the first step is that uh, for tuning any parameter in genetic algorithm, for tuning any parameter, it will consider a value set of possible values. It consider set of possible values instead of only one individual starting point. It will consider set of possible values. For example, we had beta 1, beta naught, all those values in our gradient descent, and in that we initialize the values in equal to 0 in most of the cases. So at one starting point, we had only one value, that was 0. But in this, we will have set of values for that parameter of that parameter, and this set of values is called population. So when we say that multiple values are being considered, those set of values are called population. And it does not take the value of parameter as it is. Instead, or rather, it encodes the value of parameters. When we say that it encodes the values of the parameters, it simply means that, for example, we have beta naught and beta 1 as maybe 5 and 7, but then you can convert it into binary. This number in binary will be like this. So not exactly this number is being used, but a binary equivalent of it or octal equivalent of that number is being used. So that's why we say that we encode the value of our parameter. And in this case, this 101 will act as one chromosome. So this is one chromosome, and within this single bit is called a gene.
So these are some terms that we should know, that what is a gene, what is a chromosome, what is population. All these terms should be known to us. And this encoding is analogous to our chromosome. So it depends on how it shapes our chromosome. Then it uses some objective function to optimize the values of our solution. So can you tell me that which objective function that we had used earlier for linear regression? In case when we used linear regression function, what was the objective function in that case that we tried to optimize? And also logistic regression. Do you remember the names? That what were the objective functions in that? Hanji, can anyone tell me that which objective function was used in this particular case of linear regression? मीन स्क्वायर एरर यूज So किया that था हमने. beta naught. मीन स्क्वायर एरर यूज किया था ना हमने लीनियर रिग्रेशन में. व्हेन वी वर स्टडीइंग लीनियर रिग्रेशन, उसमें हमने क्या किया था, कर्व फिट किया था. और उसमें हमने ये वाले एरर ढूंढे थे कि कौन कितना दूर है. तो हमने इसमें मीन स्क्वायर एरर निकाला था, और उसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला था इन लीनियर रिग्रेशन. एंड इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी यूज्ड क्रॉस एंट्रोपी लॉस. क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्या था? दैट वाज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन of our logistic regression for handling both the cases of 0 and 1. Now, the fourth step here is that this thing, this genetic algorithm, it is based on stochastic rules, or you can say probability based rules. It simply means that it will use a random number and probability to see that which solution must be kept or discarded. तो ये मतलब random numbers को लेगा, and also based on that some probability can be calculated, and based on that the decision will be taken कि भाई उसको रखना है या नहीं रखना. So if you plot one small flow chart of this algorithm, this genetic algorithm looks like this. At the beginning, we will start. Once you start, you have to generate the initial random population. Generate initial random population. आप क्या करोगे कि इसमें मल्टीपल वैल्यूज लेके चलोगे हर वेरिएबल की. दिखाता हूँ कैसे. फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये कर लिया, जनरेट द इनिशियल रैंडम पॉपुलेशन. once the initial random population is done, what you can do is you can compute objective function or the fitness value. Objective function or the fitness according to the population. According to the population. इसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ऊपर पॉपुलेशन बनाया अपना बीटा नॉट का. लेट्स से बीटा नॉट एंड बीटा वन और मे बी बीटा टू ऑल्सो. तीन वैल्यू ले लेते हैं, 0 0 0 0 1 0 एंड 0 1 1. एंड एक एक वैल्यू नहीं लेंगे बल्कि मल्टीपल वैल्यूज लेंगे. सो मे बी वी कैन टेक वैल्यूज लाइक दिस. चार चार वैल्यू ले लेते हैं, 0 1 1 एंड 1 0 0. Similarly for this, maybe 0 1 0, 1 0 0 and 1 1 0. So let's say that we have four values in each of them. This can be 0 1 1. Yeah. So for example हमने इन तीनों को यूज किया पहले. तो हम तीनों को यूज करके हमारा मीन स्क्वायर निकाल लेंगे. जो हमारा ये फिटनेस था, ये निकाल लेंगे कितना आया.
एंड सिमिलरली हम सेकंड सेट के लिए निकालेंगे, सिमिलरली थर्ड सेट के लिए निकालेंगे एंड फोर्थ सेट के लिए निकालेंगे। तो हर कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट द डिसीजन विल बी मेड कि भाई कौन सा बेटर है। बट इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप बस इतना सा ट्राई करके छोड़ दोगे। Once you are done with this computation of fitness value according to the population, you have to do actually three things multiple times. First step is selection. Second step is crossover. Third step is called mutation. आप इन तीनों steps को use करोगे and you will continue. ये लूप में चलता रहेगा, मल्टीपल टाइम्स आप चेक करोगे सारी वैल्यूज को एंड दिस विल बी रन के नंबर ऑफ टाइम्स। अभी देखेंगे कि क्या होता है। के नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमारे जो हैं, तो हम के नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे काम करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दीज थ्री स्टेप्स के भाई ये सिलेक्शन क्या होता है, क्रॉसओवर क्या होता है एंड म्यूटेशन क्या होता है। फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ दैट व्हाट डज दिस सिलेक्शन मीन। सो select the fittest candidate solution. That would be crossover with each other to produce the solution for next generation. Produce solution for next generation. जिसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास बीटा नॉट के चार वैल्यूज हैं, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 and 1 1 0 1. Let's say these are the four values of beta naught that we have put in the population, and somehow we got the objective function value like this 25 125 100 and 50। तो अब यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करें, कौन से वाला बीटा का वैल्यू सिलेक्ट होगा म्यूटेशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, क्रॉस ओवर के लिए। सो पॉपुलेशन में से कुछ ही सिलेक्ट होंगे, सारे तो आगे नहीं जाएंगे, कुछ चेंज करके होगा, कुछ ना कुछ अपडेट होगा। तो उसके लिए देर आर मल्टीपल मेथड्स टू मेक द सिलेक्शन। द फर्स्ट मेथड दैट वी विल बी डिस्कसिंग विल बी roulette wheel method. सो roulette wheel में क्या करना है आपने, जस्ट डू सिंपली एफ ऑफ एक्स है जो भी आपका वैल्यू आया पीछे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। अब इस केस में क्या होगा, अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स आई है तो दिस विल बी 25 अपॉन summation it will be 300, so this will be 0.0833। this one will give me a value of 0.4166। this one will give me value of 0.333। this one will give me value of 0.1667। so these are the some values that we have calculated by using the roulette wheel method. Now we have to plot them इन ए वे के भाई टोटल सम वन होगा, वो तो हो गए बिकॉज वी हैव डिवाइडेड इट बाय 300 समेशन के साथ। तो अगर मैं इन सब को प्लॉट करूं तो इट विल लुक लाइक दिस। फॉर एग्जांपल मैंने इनको प्लॉट किया, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, आई विल गो टिल 1। so this 0.08 will be somewhere here। तो
अगर मेरा नंबर जो मैं रैंडमली जनरेट करूंगा, अगर मेरा नंबर 0.08 से छोटा हुआ, from 0 to 0.08, then it will lie in this range, and the selected value of beta naught will be first one. Now if I add these two, so these are the values that I have got after doing the summation one by one. If we start from the first number, we go till the second, and then continuing with the that till the last one. So this is how it looks like. अगर मैं random number generate करता हूँ and it is between this range of 0.08 and 0.49, तो इसका value will be 0.0011, this will be 1001. तो इस केस में फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, आई विल जनरेट 4 कैंडिडेट्स फॉर नेक्स्ट फेज, क्योंकि इसमें मल्टीपल फेजेस होंगे सिमिलर टू हमारे जो और मेथड्स होते थे ऑप्टिमाइजेशन के, देयर आर मल्टीपल फेजेस, देयर आर मल्टीपल इटरेशंस, तो एक ही बार में तो फाइनल वैल्यू नहीं आ जाएगी फॉर नेक्स्ट फेज. लेट्स टेक 4 रैंडम नंबर जनरेट करवा लो बिटवीन 0 and 1. तो फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट नंबर आया वो आया 0.7, सेकंड नंबर आया मे बी 0.62, then 0.3, then 0.01. So all of them will give me corresponding numbers that we decided here. So we can write it like this. 0.7 वाला is in range third वाला, तो ये आएगा 1001. 0.62 is in the same range. 0.3 will give me this, and it will give me this. So these are my 4 values that have been selected, and this is the population that will generate the solution for the next phase. ठीक है, ये मेरी population है. Similarly, there is another method called rank selection method. इन रैंक सिलेक्शन मेथड आप क्या करोगे, सबसे पहले रैंकिंग लिखोगे, जो सबसे कम वैल्यू दे रहा है वो बेटर है, तो रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, सपोज ऐसा है कुछ. तो हमें क्या करना है, रैंक डिवाइड बाय टोटल रैंक्स. तो ऐसे अगर मैं सम कर लूँगा एंड डिवाइड कर दूंगा, तो 1/10, 4/10, 3/10, 2/10, तो सारा प्रोसेस सेम है. ठीक है, इसके बाद सपोज ये 0.1 आ गया, फिर ये 0.4 आ गया, ये 0.3 आ गया, एंड ये वाला 0.2 आ गया. तो इस केस में आप एक लाइन प्लॉट करोगे वेयर यू विल बी प्लॉटिंग इट लाइक दिस. 0.1, 0.4 ऐड करा तो 0.5, 0.8, तो ऐसे करके नंबर्स आर सेम. तो ऐसे ही अब इसमें आपने क्या करा, बस आपने रैंकिंग के हिसाब से नंबर कैलकुलेट किया, जो भी हमारी रेंज आई उसमें हमने प्लॉटिंग करी, और अब अगर मैं 4 रैंडम नंबर निकालूंगा उसमें से, उसके बेसिस पे ये रेंज में से वैल्यूज सिलेक्ट हो जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड रैंक सिलेक्शन. दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल अगर मेरे पास जो ये वाले वैल्यूज हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले, अगर ये मेरी नेगेटिव वैल्यू है, सपोज -125 था या -100 था, देन नॉर्मल समेशन वाला टेक्निक जिसमें हमारा 300 आ गया था, वो वाला बेटर ना होता टेक्निक, उसमें हमारा सम कुछ खराब हो जाता. इन दैट केस इट विल बी हेल्पफुल कि चलो रैंक मेथड लगा लो, नेगेटिव फिटनेस वैल्यू तो भी वो उसको संभाल लेगा. एंड सेकंड बेटर, इसका जो एडवांटेज है वो ये है दैट इट विल वर्क वेल इफ द पॉपुलेशन वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल ये होता 25.01, दिस इज 25.5, द अदर वन इज 26, अदर वन इज 24.9. तो अगर वो बहुत पास भी होते
तब भी वो रैंकिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक काम करता, अदरवाइज फिर थोड़ा सा इट वुड हैव बीन डिफरेंट अगर हम किसी और टेक्निक से करते। बट बिकॉज ये बहुत पास वाली वैल्यूज को संभालता है, उस चक्कर में कभी कभी इसका पेरेंट सिलेक्शन पुअर हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो kind of a drawback for this, but otherwise rank selection method is better when we have to handle the negative values. When there is also one more method that is called K tournament selection. In this you have to simply do one small thing. Suppose you have multiple values. सपोज आपके पास 6 वैल्यूज हैं ABCDEF, ऐसे करके अपने पास पॉपुलेशन में 6 हैं। आप उनमें से रैंडमली दो सिलेक्ट कर लो, के की वैल्यू 2 ले लो, रैंडमली दो सिलेक्ट कर लो, सपोज B एंड E। एंड उसमें से भी आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट करो आगे लेके जाने के लिए। आउट ऑफ B एंड E, सपोज B इज ए विनर, जिसका सपोज देयर वाज हायर ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, जिसका हाई वैल्यू होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से, दैट वैल्यू विल बी टेकन फॉरवर्ड। सो आप क्या करो, मल्टीपल टाइम्स के इक्वल टू 2 करके BE का पेयर बना लिया, या फिर आपने CD का बना लिया। तो ऐसे करके आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो एंड उसमें से विनर्स निकाल सकते हो। सपोज इसमें B था, इसमें D था, तो आपके पास ऐसे करके भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी पॉपुलेशन को फॉर द नेक्स्ट फेज। Now there is one more small concept called elitism. Elitism क्या होता है? It means that we have to select some fixed number of fittest parents, fixed number of fittest parents we have to select, uh, are chosen as it is in next solution. For example ऐसा था, सपोज मेरे ये 4 नंबर थे 50, 25, 150 एंड 100। तो इन दोनों, इन चारों में से सपोज ये वाले दोनों बेटर थे, तो इनको एडजस्ट फॉरवर्ड ले लिया जाएगा। एंड प्रोसेसिंग फालतू की, या फिर हम अपना टाइम बचा लेंगे प्रोसेसिंग करने में, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। So this is also one of the method to take the values forward. Now let's talk about crossover, and then we will talk about mutation, and then we will have numerical. So first we will discuss about crossover. Crossover simple है। For example मेरे पास ऐसा कुछ values थे 1110 and 100, ठीक है, ऐसे था। Now for example I want to do uh, maybe 2 points crossover, 2 point crossover। 2 पॉइंट क्रॉसओवर का मतलब क्या है कि आपके पास सपोज ये दो नंबर थे, जिसके पास यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 00 था, तो आप इन दोनों को स्वैप कर दो आपस में। योर नंबर्स विल बिकम 1100 एंड 1010। तो ये क्रॉसओवर है। इट इज ए 2 पॉइंट क्रॉसओवर बिकॉज यू आर एक्चुअली दो वैल्यूज को आप इकट्ठे स्वैप कर रहे हो। दिस इज ए 2 पॉइंट क्रॉसओवर। देर इज ऑल्सो वन थिंग कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट क्रॉसओवर, एंड इन दिस आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल यही नंबर था, तो आप ऐसे करके भी रैंडमली करवा सकते हो। तो आप क्या करो, ऐसे कर लो सिलेक्ट, सपोज ऐसे करके पेयरिंग कर लो। ये वाला एक हो जाएगा पेयर, एंड ये वाला अलग पेयर हो जाएगा। नाउ क्या हुआ, आपने ऑल्टरनेट कर लिया वैल्यूज को। इट इज 100
ऊपर का 0 तो रहेगा ही, नीचे वाले में 1110। तो इसमें नंबर हमारे काइंड ऑफ स्वैप हो गए हैं, बट मैं अगर इसको सपोज यहाँ पे 1 कर दूं तो ये मेरा 1001 बन जाएगा। नहीं, ये 1000 ही रहेगा ऊपर वाला, एंड नीचे वाला विल बी ऑल वंस। ये बेटर है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ऐसे था 1001। तो आपने जब इसको क्रॉस ओवर करना है तो यू कैन टेक द ऑल्टरनेट वैल्यूज। ठीक है, तो आपने क्या किया, इनका आपस में करवा दिया कनेक्शन, एंड सिमिलरली बाकी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्रॉस ओवर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट क्रॉस ओवर। नाउ देर इज वन मोर थिंग। आर यू अवेयर अबाउट ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम? सुना है कभी? व्हाट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम? It is something related to maps. For example, there are multiple points on map A, B, D, C ऐसे करके बड़े सारे points हैं। ठीक है, and a salesman has to cover all the points in a way उसके सबसे कम पैसे लगे। ठीक है, and there is kind of a graph between all these points। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास हर पाथ के पैसे होते हैं या पॉइंट्स होते हैं कि आप कितना यहाँ पे खर्च के जा रहे हो पॉइंट्स को। फॉर एग्जांपल 10, 5, 2, 1 ऐसे करके। तो इसमें आपने सारे A to F कवर करने हैं यूजिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। दिस इज द वेग आइडिया। ठीक है, कि भाई इसमें करना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे पास सोल्यूशन आया, सपोज मेरे पास 8 पॉइंट्स थे 6 की बजाय, एंड मेरा सोल्यूशन ये आया। अ, दो अलग अलग जगहों के, दो अलग अलग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ये आए, 3, 4, 8, 2, 7, 1, 6, 5 एंड 4, 2, 5, 1, 6, 8, 3, 7। Now, can we do this kind of a crossover in this? जैसे हमारे पास सपोज A to H के पॉइंट्स थे, ABCDEFGH ऐसे करके कुछ पॉइंट्स थे। इनके दो तरह का सोल्यूशन बने। एक सोल्यूशन बना ये वाला कि पहले 3 से स्टार्ट करो, या फिर ये A to H की बजाय 1 to 8 समझ लो। सो 3, C, 4 is D, 8 is H। तो ऐसे करके दिस इज माई सोल्यूशन के पहले 3 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ, देन 8, देन 2, 7, 1, 6, 5। तो आपका मिनिमम अमाउंट आएगा। सिमिलरली 4, 2, 5, 1, 6, 8, 3, 7 विल बी मिनिमम अमाउंट। बट नाउ इफ यू वांट टू क्रॉस ओवर दीज थिंग्स, तो उसमें क्या होगा कि आप अगर क्रॉस ओवर कर भी दोगे तो 8 रिपीट हो जाएगा। 8 तो मेरे पास पहले ही था। ठीक है, तो ये वाली हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते स्वैप, बट देन इसका सोल्यूशन एक है। सोल्यूशन इज कॉल्ड पार्शियली मैप्ड क्रॉसओवर। क्वेश्चन ये था that you have this 3, 4, 8, 2, 7, 1, 6, 5, these are the 8 values, and for the second case you have 4, 2, 5, 1, 6, 8 and 3, 7, these are the points that we need to change। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप बाय डिफॉल्ट इन दोनों को तो स्वैप कर ही दो। इन दोनों को आप एज इट इज स्वैप कर दो, एंड ऐसे करके लिख दो 1, 6, 8। और इधर के 3 और इधर के 2 अभी अभी हम नहीं लिखेंगे, बट 2, 7, 1 एंड these 2 विल बी देयर। अब हम शुरू करते हैं ये वाले से, पहले वाले से, और लिखते हैं यहाँ पे कि भाई क्या आएगा। 3 एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज 3 इसमें तो नहीं है इन तीनों में से। ठीक है, अगर होगा तो हम रुक जाएंगे, वो चीज़ नहीं लिखेंगे। तो 4 भी नहीं है तो 4 लिख देंगे। 8 यहाँ पे है तो हम 8 वाला भी स्किप कर देते हैं। सिमिलरली 6 एंड 5 में से 6 वाला है तो 5 वाला नहीं है, तो 5 यहाँ पे आ गया। अब प्रॉब्लम आ रही है इन दो पोजीशंस की।
जहाँ पे हमारे पास पहले 8 था और यहाँ पे 6 था, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या भरें, क्योंकि 6 और 8 तो हमारा अंदर आ चुका। बचे हैं 2 और 7, बट कहाँ पे 2 आएगा कहाँ पे 7 आएगा वो देखना पड़ेगा। नाउ सपोज वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे 8 था, तो हम 8 को किससे रिप्लेस करा हमने, 1 से, या फिर कह लो कि 1 की जगह पे 8 आया है, तो हम 1 के पास जाएंगे कि भाई ठीक है, तो 1 किसके साथ एक्सचेंज हुआ, 1 एक्सचेंज हुआ है 2 के साथ, ठीक है। 1 एक्सचेंज हुआ है 2 के साथ, तो 1 और 2 का कनेक्शन बन रहा है, 8 और 1 का कनेक्शन बन रहा है। 1 और 8 हमारे पास पहले ही है, बचा 2, तो 2 को यहाँ डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे 7 है। नाउ कंसिडरिंग द सेम सिचुएशन इन सेकंड केस, तो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। 4 2 5 में से 4 और 5 तो आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे अंदर है। 3 और 7 में से 3 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। नाउ द सिचुएशन स्टैंड्स के भाई अपने पास कुछ दो वैल्यूज नहीं है, विच इज 8 एंड 6। कहाँ पे 8 आएगा कहाँ पे 6 आएगा वो देखना है। अब देखते हैं कि भाई हमने जो इसका 8 था इसको किसके साथ रिप्लेस किया था, 8 को रिप्लेस किया था 1 के साथ, ठीक है। या फिर कह लो, हाँ ठीक है, 8 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 और 2 तो यहाँ पे है ही है। तो 2 को किसके साथ किया है हमने, आ, एक सेकेंड, हाँ 1 को 8 के साथ किया था, 8 किया 1 आया, तो बस यहाँ पे फिर 8 डाल दो, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने 1 और 8 को आपस में स्वैप किया था, अगर यहाँ पे 1 आया था तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, फिर मतलब बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना। बस इतने से काम हो गया अपना कि भाई 1 और 8 स्वैप हुआ था तो यहाँ पे 8 डाल दिया जहाँ पे हमारा 2 था पहले केस में। अगर यहाँ पे 8 आ गया इट मीन्स यहाँ पे 6 आएगा। सो जो ये हम डिसीजन ले लेके चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन सा कैसे मैप होना है, दिस थिंग इज कॉल्ड पार्शली मैप्ड क्रॉसओवर, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक, म्यूटेशन, इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन इज ऑलवेज अप्लाइड आफ्टर क्रॉसओवर, अप्लाइड आफ्टर crossover. It brings a small change in new solution, कुछ ना कुछ चेंज करके कुछ न्यू चीज लेके आता है वो। न्यू सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड। दो तरीके होते हैं जिससे हम ये करवा सकते हैं थ्रू क्रॉसओवर। So there are two methods that we can use. The first method is bit swap. The other one is bit mutation. स्वैप हम कहाँ करेंगे, स्वैप हम करेंगे फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, और उस केस में आई हैड समथिंग लाइक दिस कि भाई 2 3 6 1 4 7 8 5 ऐसे करके कुछ वैल्यूज थे। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस तो नहीं कर सकता किसी चीज से, बट आई कैन स्वैप देम कि भाई हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है सारे वैल्यूज में रहे हम, चाहे उनको आगे पीछे करें, बट स्टिल थोड़ी वेरिएशन भी आ गई। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे 2 3 6 की बजाय 2 8 6 कर दूंगा तो थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा, एंड सिमिलरली 7 8 5 की बजाय 7 3 5 हो जाएगा एंड में। तो यहाँ पे एक तो ये हम कर सकते हैं म्यूटेशन में, इनफैक्ट बिट स्वैप में। नाउ इफ आई डू बिट म्यूटेशन, बिट म्यूटेशन में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 जने थे पॉपुलेशन में, 1101 1101 1010 एंड मे बी 1000। तो इन चारों में से किसी एक में, लेट से फर्स्ट वन में, हम एक रैंडमली सिलेक्टेड लोकेशन की बिट को उल्टा कर देंगे, ठीक है। सपोज इस वाले को चेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1001, बाकी के सेम रहेंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ, इसमें वेरिएशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है तो ये पहले दोनों सेम भी थे बाय चांस, बट
अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी हो गया, दो तरह के आगे नंबर एंड बाकी तो थे ही। तो दीज आर द न्यू फोर पॉपुलेशन वैल्यूज जो हम यूज करेंगे। दिस इज काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर अस टू डू समथिंग लाइक दिस, जिसमें वेरिएशन आ जाए। और इस केस में हम बहुत ज़्यादा भी नहीं चेंजेस कर सकते, अदरवाइज हमारा जो हमने नॉर्मल फिटनेस के थ्रू हमारा पूरा प्रोसेस हमने जेनेटिक एल्गोरिथम का लगाया था, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं चेंज कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि आप इन दोनों को भी चेंज कर दो या फिर आप इन दोनों को भी चेंज कर दो। मल्टीपल लोकेशंस पे नहीं करना, सिर्फ एक ही में करना है, एक बिट का करना है, दो दो बिट्स का नहीं करना। मिनिमम चेंज करके भी वेरिएशन लेके आना है। नाउ लेट्स गो टू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डिस्कस करके वी विल क्लोज दिस सेशन। लेट्स से दैट यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। समझते हैं इस प्रॉब्लम को करना क्या है। Choose a subset from n items such that the corresponding profit sum is maximized without having the weight sum to be exceed the capacity of C। भाई ऐसा है, इस चीज को हम बोलते हैं 01 knapsack प्रॉब्लम। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट 01 knapsack प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपको या तो किसी चीज को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, या आप उसको रखोगे या नहीं रखोगे। अगर रखोगे तो उसका वेट आपके साथ जुड़ जाएगा, और अगर आप वेट की लिमिटेशंस में रह के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, देन इट इज ए गुड सोल्यूशन। So this is problem statement, and you have to maximize the product of pi into xi, ठीक है, and which is subject to wi into xi should be less than equal to c। के भाई सपोज मेरे पास मैक्सिमम 10 किलो की एक पैकेट फिल करनी है मैंने, तो कुछ ऐसा उठाया जाए जिसमें वेट भी आ रहा है बट प्रॉफिट भी मैक्सिमम चल रहा है। तो एक सोल्यूशन देखते हैं कि भाई इसमें करना क्या है, इसमें प्रॉब्लम को समझते हैं हुआ क्या है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये सब गिवन है। वी हैव फोर आइटम्स ए बी सी एंड डी, वेट्स आर गिवन टू अस। हमें दिया हुआ है कि कैपेसिटी 100 है, तो इसका मतलब हम जब भी कोई चीज़ उठाएंगे उसको इस हिसाब से उठाना है कि 100 का वेट क्रॉस ना हो। ठीक है, साइज 4 है पॉपुलेशन का, 4 बिट स्ट्रिंग है क्रोमोसोम ए बी सी एंड डी, एक्स ए एक्स बी एक्स सी एंड एक्स डी। नाउ फर्स्ट टू फिटेस्ट क्रोमोसोम्स सिलेक्टेड एज इट इज। ठीक है, इन दोनों में से, मतलब इन चारों में से पहले दो फिटेस्ट क्रोमोसोम्स को एज इट इज रख लो। थर्ड एंड फोर्थ को आप करो यूज 1 पॉइंट क्रॉस ओवर इन द मिडल फॉलोड बाय सिंगल बिट म्यूटेशन। ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है आगे, इसका सोल्यूशन भी इसी चीज को यूज करके बनाया हुआ है। एंड आफ्टर दिस बिट्स विच विल बी चोजन फॉर म्यूटेशन फॉलोज दिस साइक्लिक ऑर्डर ऑफ एक्स डी सी बी एंड ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन गिवन है 1111 1 000 1010 11001। इसका मतलब सिंपल है, बिकॉज दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। 1111 का मतलब है कि आपने ए बी सी और डी को चारों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमें दिख रहा है कि अगर मैं चारों को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा टोटल सम विल बी ग्रेटर देन 100 ऑब्वियसली। ठीक है, और वो अलाउड नहीं है। तो ऐसा कुछ हमें देखना है कि भाई हमारा वेट लेस देन 100 रहे, अप टू 100 का हमें हमें अलाउड है। तो हम सबको टेस्ट करेंगे, सारे पॉपुलेशन के वैल्यूज को, एंड वी विल हैव टू कंप्यूट एवरीथिंग फॉर 12 इटरेशंस। 12 इटरेशन के एंड में जो भी होगा वो देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा बेस्ट है। सो थिंग्स आर सिंपल। हमारे पास चार नंबर थे। ठीक है, 1111 1000 1010 एंड 1001। अगर चारों को सिलेक्ट कर लोगे तो हमारा वेट इज गोइंग मोर देन 100। तो ये वाला तो सिलेक्ट ही नहीं होगा, तो इसका तो हमने जीरो ही कर दिया कि भाई इसका फिटनेस जीरो है, ये हमें हमारे लिए फिट ही नहीं है सोल्यूशन। अगर मैं 1000 करता हूँ, मैंने सिर्फ ये वाली चीज सिलेक्ट करी, पहले वाली, वेट 45 है, लेस देन 100 है, अलाउड है, उसका प्रॉफिट 3 है, तो वही 3 हमने यहाँ पे लिख दिया कि फिटनेस वैल्यू उसकी 3 है। सिमिलरली एक सेकेंड, ये 3 फिटनेस, ये एक सेकेंड यहाँ पे ये वाला 3 है। सो दिस इज द 3 वैल्यू जो मैं कह रहा हूँ। इस केस में जो 1010 हम लिख रहे हैं, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ए और सी को सिलेक्ट कर रहे हैं। 45 और 50 का सम इज 95 विच इज लेस देन 100। दिस इज ऑल्सो अलाउड, सो 3 + 8 इज 11, तो ये मेरा 11 आ गया। एंड सिमिलरली 1001 का जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा सिलेक्ट क्या हुआ, ठीक है, सिलेक्ट क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारा सिलेक्ट हुआ ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू,
ठीक है। तो जो हमारा ये फिट टेस्ट हमने लिखे हुए हैं 3 2 1 4, इसका मतलब है दैट 1 और 4 को हम ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, उसको एंड में रख लिया। 3 और 2 हमारा सिलेक्ट हुआ था, सेकंड और थर्ड हमने वो लिख दिया यहाँ पे कि भाई पहला और मतलब थर्ड और सेकंड वाला हमारा ठीक है, पहला और चौथा हमारा वेस्ट है, तो हम टॉप 2 को रखेंगे। और बचे हुए 2 को हमने क्या करना था, देयर वाज समथिंग रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड कि उनका क्या करना है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू हैव टू यूज थर्ड एंड फोर्थ फिट टेस्ट के लिए 1 पॉइंट क्रॉस ओवर इन द मिडल फॉलोड बाय सिंगल बिट म्यूटेशन। पूरी भाई एक बिट भी चेंज करनी है ऑफ द फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग। तो भाई देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि भाई अपने पास ये दो हैं जिनको हमने बोला है कि भाई तुम्हारी पोजीशन 1 और 4 है, मतलब तुम थर्ड और फोर्थ नंबर पे आते हो, जो तुम्हारा ये 1 और 4 सीरियल नंबर है। दिस इज एट थर्ड एंड फोर्थ लोकेशन। तो 1111 को 1001 के साथ मिडल में से म्यूटेशन वो कर दो, क्रॉस ओवर कर दो। सो दिस विल बी 1101। ठीक है, 1101 जुड़ गया। सिमिलरली 1011 विल बी कनेक्टेड क्रॉस ओवर में, एंड उसमें हम सबसे पहले पहली बिट को, ऊपर वाले की पहली बिट को उल्टा कर देंगे, म्यूटेट कर देंगे, एंड द अपडेटेड नंबर विल बी 1100। ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड टाइम वही सब करेंगे सारा कुछ। ठीक है भाई, जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज हैं नाउ, इसमें बिकॉज मेरा फिटनेस का वैल्यू 11 था पहले वाले में, थर्ड का, इसलिए ये टॉप पे आया था। इसका फिटनेस वैल्यू 3 था, ये सेकंड पे आया था। 00 वाले एंड में आ गए थे। अब क्या हुआ है, जो मेरा ये टॉप पे आया था वो मेरा टॉप पे ही है। दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। जो मेरा ये वाला बेस्ट आया था उसको हमने इस बार टॉप बना दिया, सेकंड वाले को सेकंड बना दिया, थर्ड पे हमने 1100 को रख दिया, एंड फोर्थ पे हमने 1011 को रख दिया। फिर सबका सिलेक्ट करा, कैलकुलेशन करा, 1 वाला 1 पे आ गया, 3 वाला 2 पे आ गया, 2 वाला 3 पे आ गया, एंड सो ऑन, 0 वाला एंड पे। और अब हम थर्ड और फोर्थ को आपस में करेंगे। ठीक है। नहीं, थर्ड और फोर्थ पे तो हमारा 2 और 4 था, जस्ट अ सेकेंड, गलत हाईलाइट कर दिया। 2 और 4 हमारा है, तो 2 वाला ये है, 4 वाला ये है। तो 1000 एंड 1011 को हम करेंगे, ठीक है, क्रॉस ओवर। सो दिस विल बी 1011 ऊपर और 1000 नीचे। अब सेकंड बिट को करेंगे क्योंकि सेकंड टाइम है, तो यहाँ पे उसको चेंज करने पे 1 का 0 बन गया, इट विल बी 1001। तो ऐसे करके हम चलते जाएंगे, हमारा जो भी लेटेस्ट वैल्यू आता रहेगा 0 1 2 3 ऐसे करके हमारे इटरेशंस में शो होता रहेगा फिटनेस वैल्यू के साथ, अप टू 12 इटरेशंस। तो 12 नंबर, 11 वाले पे 12 हो गए। हाँ ठीक है, तो 0 to 11 वर द 12 इटरेशंस। इनफैक्ट 0 पे तो स्टार्टिंग पॉइंट था, 1 वॉज माई फर्स्ट इटरेशन, 2 वॉज माई सेकेंड, ऐसे करके 12 तक जाना है। 12th इज माई फाइनल इटरेशन। तो अब यहाँ पे इसमें हमारी जो फाइनल रैंकिंग आई है वो ये आई है दैट 1 3 4 एंड 2। ठीक है। तो उसके बेसिस पे वी नो नाउ दैट आर बेस्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल इज 0110। ठीक है, दैट इज माय फाइनल, ये वाला जो फर्स्ट आया है। एंड टोटल प्रॉफिट इज 0 into 3 प्लस 1 into 5 प्लस 1 into 8। अब इसी चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 0110 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड टोटल सम इज 13। और टोटल वेट हमारा जो हम लेके जा सकते हैं, इट इज 40 + 50 विच इज 90 विच इज लेस देन 100। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। देयर वर मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल इटरेशंस करने पड़े, क्रॉस ओवर भी करना पड़ा, म्यूटेशन भी करना पड़ा, बट देन दिस इज द फाइनल आंसर कि भाई वी कैन टेक द मैक्सिमम वेट ऑफ 90 बीइंग इन द लिमिट्स, बीइंग इन द रिक्वायरमेंट्स। हमारा ये सोल्यूशन निकल के आया है। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज ऑल. So that's all. This is how we will solve this numerical. So if you have a doubt in today's class at any point in this numerical or some theory before this, you can ask it right now. Otherwise, the lecture is over. Any doubt?
No, sir. Okay, I'm ending the session now. We are only left with one topic, neural networks, that will be covered in uh, next class. And then the syllabus is over for this subject of machine learning. Thank you. I'm ending the session now. Thank you, sir.